Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 27 for the course of Principles of Communication Systems. So let's see what we previously covered in the course. Starting with the fundamentals of communication, we did the noise. We covered the noise types that affect our communication system. We studied the effect of channel, and then we moved on to amplitude modulation after covering the basics of transmitter and receiver structures. Then we went on to angle modulation schemes, which is FM and phase modulation. We saw the effects of noise on these analog communication systems, and then we also analyzed them in detail. And afterwards, we started going towards the digital modulation schemes. We started with pulse modulation. We covered its different variants, digital and analog. Then we shifted to digital modulation schemes and studied the basics, which include the information capacity, bits, baud rate, and kind of related terms. Afterwards, we covered the different basic modulation schemes, which include the amplitude shift keying, frequency shift keying, and phase shift keying. Then we moved on to a bit complex digital modulation schemes like QPSK, OQPSK, and 8PSK. So in today's lecture, we are going to cover quadrature amplitude modulation and its variants. We are going to analyze the bandwidth efficiency, and then we are going to do another technique which is known as DPSK. Then we are going to analyze it as well. So let's start with quadrature amplitude modulation. So basically, this quadrature amplitude modulation is a form of digital communication which is quite similar to the phase shift keying that we covered in the previous lecture. Except when we were doing the phase shift keying, we saw that all the information was modulated in the phase of the carrier. Whereas now in quadrature amplitude modulation, we are going to use both phase and amplitude of the carrier to transmit our information, the digital information. So the amplitude and phase shift keying in this case are combined in such a way that the position of the signaling elements or the symbols is at the maximum or at the greatest possible distance between each symbol. ठीक है. So ये किस लिए कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास जो likelihood है of one symbol being misinterpreted as another one, ठीक है, due to noise, उससे ताकि आप उस likelihood को reduce कर सकें. ठीक है जी. So टेक्निक है जी 8 कैम जो हम देखेंगे आज. So where the name shows that m is equal to 8 so that n is equal to 3. अब इस केस में अगेन जैसे पहले बात हुई कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल नहीं होगा एज 8 PSK. ठीक है, इट इज गोइंग टू हैव डिस्टेंस इंफॉर्मेशन इन द एम्पलीट्यूड एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द 8 कैम ट्रांसमीटर. हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इसकी फिगर. ठीक है जी. और यू विल फाइंड सिमिलरिटीज टू द 8 PSK ट्रांसमीटर दैट वी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. तो अगेन उसी तरह से जैसे 8 PSK में हम इनकमिंग डेटा को डिवाइड कर रहे थे ग्रुप्स में, ट्राइबिट्स में. ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 में, विच इंक्लूडेड द आई इन फेज, क्वाड्रेचर फेज एंड द कंट्रोल बिट स्ट्रीम. ठीक है. सो इस केस में भी आप आई की और सी में ही इन्हें डिवाइड करेंगे. सो इन सारे चैनल्स पे, आई चैनल, क्यू चैनल और कंट्रोल चैनल पे, दिस इज द कंट्रोल चैनल, इन सब पे जो आपके पास बिट रेट होगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू FB/3, वेयर FB इज द bit rate of the input data. So we are going to split, we are going to use a bit splitter here again, और I, Q और C चैनल्स में अपने बिट्स को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है जी.
सो उसी तरह जिस तरह प्रीवियसली हमने किया, वी हैव दिस 2 to 4 level converter which is actually a DAC, digital to analog converter. The only change that we have here is कि यहाँ पे हम 8PS के केस में एक यहाँ पे नॉट गेट था, वो अब यहाँ पे नहीं है. So instead of C bar being fed to this Q channel, हम हमारे पास जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल बिट होगा, वो भी C ही जा रहा होगा, यानी कंट्रोल बिट ही जा रहा होगा instead of C bar. So both here in I and Q channels आपके पास C ही जा रहा होगा to the 2 to 4 level converter. बाकी आगे चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं. You have this spam signal, ठीक है, in both I and Q channels, and you multiply it with a carrier, ठीक है, sin omega ct in case of n phase and cos omega ct in case of quadrature phase. But then you feed it to a linear summer and pass it through a band pass filter, and you get is what you get as at the output is a at cam output, ठीक है. ये आपके पास एक ट्रुथ टेबल है फॉर 4 लेवल कन्वर्टर्स वेयर IQ अब यहीं पे है, ठीक है. सो दीज आर द आउटपुट लेवल्स, डिफरेंट वोल्टेजेस. अभी हम मैंने आगे मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, देखते हैं कैसे आपकी कॉन्स्टलेशन डायग्राम वगैरह कैसे बनेगी ये फेज डायग्राम. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल सिमिलर है जैसे हमने पिछले लेक्चर में की थी फॉर यानी IQ और C में 000 आप ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो बाकियों के लिए भी आपने पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था एज अ होमवर्क असाइनमेंट जो भी कंसिडर कर लें कि आपने बाकी जो कम्बिनेशंस हैं उनके लिए खुद ये प्रैक्टिस कर लेना. 2-3 के लिए प्रैक्टिस कर लें, इट विल बी मोर देन एनफ. सो जो इनपुट है आई चैनल को IQ एंड C चैनल में दे आर 000. सो पिछली स्लाइड थी उस पर आपने वोल्टेज लेवल्स देखे थे, ठीक है. आउटपुट इस केस में आपके पास Q और I और C के लिए आपके पास -0.41 वोल्ट्स आएगी, और सेम Q और C के लिए भी -0.4 वोल्ट्स आएगी. अब ये आपके पास पैम सिग्नल आ गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल. अब आगे आपके पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है जिसमें आप ये वैल्यू जो है ये वोल्टेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं -0.541 विद अ साइन विद अ कैरियर एट द इन फेज, एंड क्वाड्रेचर पे ये कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. सो आपके पास इन फेज जो कंपोनेंट आ गया इट इज दिस थिंग, एंड द क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट इज दिस थिंग, ठीक है. अब आगे आपके पास लीनियर समर है, सो यू पास इट दिस सिग्नल थ्रू अ लीनियर समर, तो वो ऐड अप कर लेगा इन दोनों को. एडिशन जब होगी यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, ठीक है. और यूजिंग दिस साइन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, दैट इज 0.765 साइन ऑफ ओमेगा ct माइनस 135 डिग्रीज. सो 000 आपके पास 135 डिग्रीज पे है विद दिस एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसलिए द एम्पलीट्यूड मैटर्स हियर, ठीक है. सो अगेन फॉर रेस्ट ऑफ द बिट्स maybe these bits you can practice this thing on your own, ठीक है. ट्रुथ टेबल आप पिछली स्लाइड से देख सकते हैं. So let's see the phase and the constellation diagram. So here it is the truth table, ठीक है. ये 8 कैम का आपके पास आ रहा है जी ट्रुथ टेबल. सो यहाँ पे अगर आप देखें QIC पे एम्पलीट्यूड 0.675 वोल्ट है और फेज 135 है. सो सेम -135, सो सेम -135 फेज आपको 00001 के साथ भी मिल रहा है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है. एक केस में 0.765 वोल्ट है, एक में 1.848 वोल्ट है. और फेजर अगर आप देखें तो यू कैन सी द फेजर 45, 135 एंड सो ऑन, ठीक है. सो ये आपके पास आगे इसकी फेजर डायग्राम. अलबत्ता इसमें ये चीज़ नोट करने की है, एक सिंबल आपके पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सेम फेज के साथ दो सिंबल्स हैं बट दे विल हैव अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है. तो डिसीजन रीजन आप अगर देखें तो यू विल सी कि काइंड ऑफ
the Decision region is now something like this. Let's say हम इस 110 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, यानी इस वाले के लिए. सो अगर नॉइज़ की वजह से ये वाला सिंबल आपका लेट्स से रिसेप्शन पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, so you will be easily able to सी के ये कौन सा सिंबल है, ठीक है. So this is the second, this one this figure C shows the constellation diagram, ठीक है. इसमें आप different bits देख सकते हैं कहाँ पे आ रहे हैं. Same, for example, these two bits, these two symbols, they are on the same, they are with the same phase but different amplitudes, ठीक है. amplitudes आप यहाँ से truth table से देख सकते हैं इनका. So 8QM काफ़ी सिमिलर है टू 8PSK, ठीक है, रिगार्डिंग द बिट रेट, बिकॉज वहाँ पे भी 3 बिट्स आप ट्रांसमिट कर रहे थे पर सिंबल, यहाँ पे भी पर सिंबल 3 बिट्स ही होंगे, एक्सेप्ट दैट वहाँ पे 8 फेजेस थे, यहाँ पे 4 फेजेस हैं अलॉन्ग विद 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. सो एज अ रिजल्ट जो आपके पास फंडामेंटल मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट रेट चेंज है वो दोनों के इक्वल, दोनों के 8PSK और 8CAM के इक्वल होंगे. So therefore जो minimum bandwidth required है for 8CAM, it is also FB by 3 similar to that of 8PSK, ठीक है जी. और baud rate again ये सारी चीज़ें सेम होंगी as that of PSK 8PSK. तो 8PSK वाली जो एग्जांपल हमने की थी, you can also modify it for 8CAM. Now जो 8CAM का रिसीवर होगा it will also be similar to 8PSK, ठीक है, quite similar. जो डिफरेंस है उसमें हमें पता है कि जो पैम लेवल्स है उसमें आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट डिटेक्टर पे भी ये चीज़ आएगी, और बाइनरी सिग्नल जो होगा एट द आउटपुट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसमें भी आएगा, क्योंकि अब आपके पास 2 एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वन देयर, और 4 फेजेस हैं, ठीक है जी. So this means कि आपके पास जो 4 demodulated PAM levels हैं in 8CAM, they are different from those in 8PSK. So analysis इनका थोड़ा different होगा, ठीक है जी. So let's move on to the next slide. So this is the summary for ASK, FSK and PSK and CAM, ठीक है. These are the, so amplitude shift keying में encoding scheme आप single bit ले रहे होते हैं, ठीक है, एक सिंबल से एक बिट रिप्रेजेंट हो रहा होता है, पॉसिबल आउटपुट दैट मीन्स 2 ही होंगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में. और मिनिमम बैंडविड्थ आपके पास FB के इक्वल है, विच इज द इनपुट बिट रेट, एंड द बॉड रेट विल आल्सो बी इक्वल टू द मिनिमम बैंडविड्थ, दैट इज FB. So I will skip for FSK and BPSK, you can do it yourself. QPSK के केस में आपके पास सिंगल बिट की बजाय डाई बिट्स होते हैं, ठीक है. सो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें डबल हो जाएंगी, आउटपुट्स पॉसिबल आपके पास 4 हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ 2, बिकॉज अब आपके पास 4 फेजेस हैं टू रिप्रेजेंट दीज डाई बिट्स. सो इफेक्टिवली जो मिनिमम बैंडविड्थ है और जो बॉड रेट है इट विल आल्सो बी हाफ्ड, ठीक है, और सो यू अचीव सम बैंडविड्थ कंप्रेशन. 8PSK के केस में यू रिप्रेजेंट द बिट्स बाय ट्राई बिट्स, ठीक है. यू विल हैव पॉसिबली 8 outputs with the bandwidth further reduced, और इस केस में आपके पास बैंडविड्थ होगी FB by 3 and baud rate will be equal to this thing, ठीक है जी. So if you move down towards this thing, you will see कि अगर आप 128 PSK करते हैं तो 128 means 128 levels and they can be represented by 2 to the power 7, आप कह सकते हैं 2 to the power 7 m की वैल्यू होगी आपके पास, यानी नंबर ऑफ बिट्स 7 हो जाएंगे. 7 number of bits, so output possible is 128. The minimum bandwidth will be equal to FB by 7 and the baud rate will also be equal to FB by 7. So let's talk about the bandwidth efficiency now. Bandwidth efficiency को आप information density या spectral efficiency भी कहते हैं. It is often used to compare digital modulation techniques to one another, ठीक है. So bandwidth efficiency basically है क्या? It is the ratio of transmission bit rate to minimum bandwidth required for particular modulation scheme, ठीक है जी. So transmission bit rate divided by the minimum bandwidth.
सो बैंडविड्थ एफिशिएंसी आपके पास ये आ गई और यूनिट्स इसके आगे बिट्स पर साइकिल, ठीक है। सो बीटा एन इज द बैंडविड्थ एफिशिएंसी। और बैंडविड्थ एफिशिएंसी को आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देख सकते हैं, व्हिच इज इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 100। सो लेट्स डू एन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास एक 8 पीएसके सिस्टम है। इट सेज दैट ऑपरेटिंग विद एन इंफॉर्मेशन बिट रेट, सो बिट रेट है उसका 24 किलोबिट्स पर सेकंड। कहता है डिटरमिन द बॉड रेट, मिनिमम बैंडविड्थ एंड बैंडविड्थ एफिशिएंसी। सो बॉड हमें पता है कि it is it's a certain FB by 3, ठीक है, for 8 PSK. So we plug in the values. Your bit rate is 24 kilobits per second and you divide it by 3, so 8000 baud per second is your baud rate. Bandwidth is again for 8 PSK हमें पता है it is equal to FB by 3, so it is equal to 8000 hertz या 8 kilohertz. अब बैंडविड्थ एफिशिएंसी आप इस इक्वेशन से, क्योंकि आपने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, सो यू कैन कंप्यूट इट यूजिंग दिस। सो द बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3 बिट्स पर सेकंड पर साइकिल ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है जी। सो 8 पीएसके के केस में क्या आ गई बीटा एन, इट इज इक्वल टू 3 बिट्स पर सेकंड पर साइकिल ऑफ बैंडविड्थ। Let's do another example. इसमें कहता है for 16 PSK and a transmission system with a 10 kilohertz bandwidth, determine the maximum bit rate. Now 10 kilohertz is the bandwidth, 16 PSK की हम बात कर रहे हैं। So bandwidth जो होगी efficiency है for 16 PSK it is 4, ठीक है जी, which means that 4 बिट आप ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द सिस्टम फॉर ईच हर्ट्ज इन द बैंडविड्थ। सो देयरफॉर द मैक्सिमम बिट रेट इस केस में होगा इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड द बैंडविड्थ एफिशिएंसी। ये जो ऊपर हमने इक्वेशन 27 किया है उसी को आगे पीछे आपने रियलाइन किया और यू गॉट दिस 40 के बिट्स पर सेकंड, 40 किलो बिट्स पर सेकंड। So this is the comparison of beta n with the efficiency of bandwidth efficiency of different modulation schemes। और देखें जितनी bandwidth efficiency ज़्यादा उतना अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। So ASK या FSK और BPSK, क्योंकि इन दोनों में जो पॉसिबल आउटपुट्स होंगी वो दो ही होंगी, 1 या 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, हाई और लो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपके पास बीटा एन होगा, जो बीटा एफिशिएंसी होगी जो यहाँ पे वो होगी 1 इन तीनों केसेस में। QPSK के केस में इंक्रीज हो जाएगी टू 2। अगेन 8 PSK के केस में क्योंकि आप ट्राइबिट्स इनकोड कर रहे हैं यू विल हैव इट इक्वल टू 3। 8 कैम के लिए भी 3। 16 PSK के केस में क्वाड बिट्स होंगे, 4 बिट्स होंगे एट अ टाइम, सो यू आर गोइंग टू हैव दिस एफिशिएंसी इक्वल टू 4। और इसी तरह 16 कैम के लिए भी यही होगी। 32 PSK के लिए ये 5 हो जाएगी और 64 के लिए ये 6 हो जाएगी, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा ये एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होगी आपके सिस्टम की। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर काइंड ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग नोन एज डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। अब इस केस में instead of modulating your information in the phase of the carrier, what you do is कि जब आपकी इंफॉर्मेशन होगी इट विल बी इन द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सिग्नलिंग एलिमेंट्स। एब्सोल्यूट फेज की आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लट से आपके पास फेज चेंज हो रहा है दिस मींस आप 1 से पहले अगर 1 था तो अब आपके पास 0 है। अगेन अगर फेज चेंज होगा इट इज गोइंग टू मीन कि ये आपके पास दोबारा 1 ट्रांसमिट हो रहा है। अगर फेज चेंज नहीं होगा तो इट मींस कि जो भी पहले वाला सिंबल था वही ट्रांसमिट हो रहा है इस दफा भी, ठीक है। So in this case you don't need to recover the phase, ठीक है। कैरियर आपको इसमें रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम एंड नाउ जो आपके पास रिसीव्ड सिग्नल होगा इन दिस केस
it is going to be delayed by a one signaling element, यानी one symbol, and then compared with the next received signaling element. अगर change आ रहा हुआ तो it means you are transmitting the other bit, else you are transmitting the same bit. So differential BPSK, the simplest possible देख लेते हैं. So in this case जो incoming information bit होगा, it is x naught with the preceding bit prior to entering the BPSK modulator. ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट डेटा बिट होगा उसका, क्योंकि आपके पास प्रीसीडिंग बिट कोई नहीं है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करने के लिए. सो एक इनिशियल रेफरेंस सिग्नल अज्यूम कर लेते हैं आप कि आपके पास एक वेल नोन सिग्नल अलर्ट से 1 है या 0 है, जो भी है ये दोनों को रिसीवर ट्रांसमीटर पे पता होगा. ठीक है, ये प्री डिफाइंड होगा, मे बी हार्ड कोडेड होगा. अब जो एक्स नॉट आउटपुट डेटा है और जो फेज आउटपुट का बैलेंस मॉड्यूलेटर पे, इसमें इसके दरमियान एक रिलेशनशिप होगा जो आगे चल के देखते हैं. अगर आपके पास इनिशियल रेफरेंस बिट लॉजिक 1 है, आउटपुट जो उस केस में एक्स नॉर से होगी, इट इज सिंपली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट. ठीक है जी, आगे नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे. सो जो फर्स्ट डेटा बेटा, इट इज एक्स नॉट विद द रेफरेंस बिट, वेल नोन रेफरेंस बिट, और अगर वो सेम है तो एक्स नॉर की जो आउटपुट होगी इट इज गोइंग टू बी 1, और अगर ये डिफरेंट है तो उसकी आउटपुट होगी 0. ठीक है जी, और देन आगे जो बैलेंस मॉड्यूलेटर होगा इसमें इट इज गोइंग टू ऑपरेट सेम एज द कन्वेंशनल बीपीएसके में, जैसे हमने देखा था. लॉजिक 1 आपके पास साइन ओमेगा सीटी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, एंड लॉजिक 0 आपके पास माइनस साइन ओमेगा सीटी प्रोड्यूस करेगी. So this is the DBPS के ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, आपके पास एक 1 बिट डिले आपने किया और बैलेंस मॉड्यूलेटर पे दिया, और दिस इज योर रिकवर्ड डेटा. सो दिस इज अ रिसीवर स्ट्रक्चर हियर. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट आउटपुट्स फॉर दिस बैलेंस डीमॉड्यूलेटर. यहाँ पे आप ये इन डिटेल देख सकते हैं. सो रेफरेंस फेज आपके पास हम कहते हैं जी, रेफरेंस फेज इज 1, और सो देर इज गोइंग टू बी, अगर सिग्नल नेक्स्ट आपका 0 है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगी. ठीक है, और then there is a 0 degree shift. This means it's a 1. Again, if it's a 0 degree shift, it means it is the same bit as the previous one, any 1, and so on till you have this change in your output. ठीक है, so this was DBPSK. So this was all about the digital modulation schemes. या अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बिट एरर रेट वगैरह और रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं उसके वो देखेंगे. ठीक है, फॉर नाउ जस्ट बिट ऑफ जनरल नॉलेज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम. सो अभी तक हमने देखा कि जब हम नॉइज़ की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं गॉसियन नॉइज़ की, एडिटिव नॉइज़ की. सो जनरली जब आप कम्युनिकेशन चैनल कोई भी जब आप देखते हैं तो उसमें apart from just simple additive noise, there are other types of distortions too. ठीक है, so there is a phenomena known as multipath fading. होता क्या है इसमें, जब आपके पास एक सिग्नल ट्रेवल करता है फ्रॉम अ ट्रांसमीटर टू अ रिसीवर, इट इज क्वाइट पॉसिबल, rather it's very common कि उनके दरमियान लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश ना हो. जब आप कमरे में बैठे हैं तो आप मोबाइल पे सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि एंटीना आपके सामने है तब आप रिसीव कर सक रहे हैं. सो दैट मीन्स समहाउ दैट सिग्नल इज रीचिंग यू इवन if it is not line of sight. अगर इवन लाइन ऑफ साइट भी है तो उस सिग्नल के पास इनफाइनाइट मैनी पाथ्स हैं टू रीच द रिसीवर. ठीक है, वो किसी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके आ सकता है,
वो किसी सरफेस से पेनिट्रेट होके आ सकता है, रास्ते में एब्जॉर्प्शन भी होगी। ठीक है, आप गाड़ी में अगर जा रहे हो तो अगेन गाड़ी के मोशन की वजह से इश्यूज आएंगे। ठीक है? ये हो सकता है कि आप किसी बिल्डिंग के पीछे हो, बिल्डिंग की बिल्डिंग में वो सिग्नल लट से वो एब्जॉर्ब कर रही है वो चीज़, यानी शेडोइंग हो रही है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। सो सिग्नल जनरली आपके पास जो रिसीव हो रहा होता है एट द रिसीवर, इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल रिफ्लेक्टिव पाथ्स। ठीक है, इस चीज में अब ये जो चीज है इसे हम कहते हैं मल्टीपल पाथ प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ड्यू टू मल्टीपल पाथ प्रोपोगेशन there can be many fluctuations in the received signals amplitude, phase and angle of arrival. So the effects of these fluctuation overall, all these combined fluctuations is known as multipath fading. So detail में नहीं जाएंगे, just tell you a few types of multiple path fading. So पहली है large scale fading और then small scale fading. Large scale fading generally आपके पास mainly consists of path loss, obviously free space path loss, ठीक है, directly proportional to the square of distance. Then you have shadowing, अगर आप किसी पहाड़ के पीछे हैं, बिल्डिंग के पीछे हैं, सो ऑन। सो जनरली ये जो चीज़ें हैं ये आपकी टेरेन की वजह से आ रही हैं। ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट जो टेरेन है ना, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं। देन देयर इज स्मॉल स्केल फीडिंग। स्मॉल स्केल फीडिंग का कॉज क्या जी? देयर इज मल्टी पाथ डिले स्प्रेड। ठीक है, उसमें अगेन दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्लैट फेडिंग और एक है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। फ्लैट फेडिंग क्या है कि आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी पे इक्वल फेडिंग काइंड ऑफ आ रही है, और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग क्या है कि आपके पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे फेडिंग उसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और यानी डिफरेंट चीज़ों को इफेक्ट कर रही है आपकी कम्युनिकेशन प्रोपगेशन में। और देन इसी चीज़ को अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करें, यू हैव डॉपलर स्प्रेड। उसमें आपके पास फास्ट फेडिंग आ जाती है, स्लो फेडिंग आ रही है, फिर मूविंग लेट से फास्ट। ठीक है, तो देन फेडिंग इज गोइंग टू बी, उसकी जो वेरिएशन होगी वो डिफरेंट उस तरह आ रही होगी, डिफरेंट तरीके से। ठीक है, जो फेडिंग होगी इट इज गोइंग टू बी अब्रप्ट और समथिंग लाइक दिस। ठीक, सो जब आप आगे कभी भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी सुने तो यू शुड बी एबल टू जस्ट टेल कि व्हाट इज दिस फेडिंग। ठीक है, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि फेडिंग इज ड्यू टू दिस मल्टीपल पाथ प्रोपगेशन एंड द इफेक्ट इज डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो डॉपलर स्प्रेड का आपने जनरली नाम भी सुना होगा। इट इज कहीं पे ये एज अ नॉइज आएगा, लेकिन कहीं पे ये बड़ा यूजफुल भी होगा, फॉर एग्जांपल रडार सिस्टम्स में। ठीक है, ये सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट, डॉपलर स्प्रेड वही चीज़ है जो आप एक एम्बुलेंस आपके पास करीब आ रही हो तो आपकी जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो हुटर है उसकी वो डिफरेंट है, और व्हेन इट इज मूविंग अवे इट इज डिफरेंट। ठीक है, सो यू कैन यूज दीज कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स आल्सो। ठीक है, यानी खाली डिस्ट्रक्टिव ही नहीं है ये चीज़। ठीक है जी, सो सो वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल, दिस वाज इट। ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो, बिकॉज इट वाज जस्ट अ बेसिक कम्युनिकेशन, सो इट्स काइंड ऑफ इट विल सर्व यू एज अ बेसिक नॉलेज, नॉट मोर देन। हम टेक्निकलिटीज में इसके नहीं जाएंगे। ठीक है जी, दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। If you have any questions you can ask in the interactive session. Inshallah, see you in the next lecture. Allah Hafiz.